Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. हरे कृष्णा। थैंक यू सभी डिवोटी, सभी भक्तजनों को। सूरनाथ प्रभु, आप हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नाम्ने नमः आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौरगाथा धामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चाद सितारणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये प्रभु गौड़ा प्रभु, मैं अब डिस्प्ले कर रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा लोगों को अनम्यूट करके पूछ लीजिए जो कोई समझने में दिक्कत, साउंड क्लियर है
या गति ठीक है, तेज है या मध्यम है, और धीरे चलना है, और स्लाइड्स वगैरह सब क्लियर है। एक बार ये फीडबैक ले लीजिए। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को। आप लोग अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर बस बता दीजिए आवाज सब कुछ क्लियर है। अभी मैं स्लाइड प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। जी प्रभु जी, सब हरे clear है। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। It is, हरे your कृष्णा। sound is very बहुत loud and क्लियर है, clear. पिक्चर भी And- क्लियर है, And आप और जो सब बता रहे हैं कुछ वो सही है अच्छा आ रहा है, स्लाइड्स Thank भी you. अच्छे हैं, सब बेहतरीन है, सब भगवान कृष्ण की कृपा है। थैंक यू बहुत आप लोगों को। सब क्लियर है, तो कोई अब दिक्कत नहीं। मैं सूरनाथ प्रभु हम लोग का क्लास लेंगे सारा, और मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। माफी चाहता हूँ इस इनकन्वीनियंस के लिए। सूरनाथ प्रभु मैं आपको अभी म्यूट हो जाएंगे, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का आज तीसरे दिन गीता अंडरस्टैंडिंग के कार्यक्रम में स्वागत है। 2 दिन समाप्त हुआ, 18 दिन में 2 दिन समाप्त हुआ, मतलब 10% हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। 1/10 रास्ता समाप्त हुआ। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर जिसका नाम है कर्म योग, तो हम लोग एक बार रिकैप करेंगे। पहला दिन हम लोगों ने देखा जिसका नाम था विषाद योग। उस दिन हम लोगों ने देखा धृतराष्ट्र दुर्योधन को द्रोणाचार्य से बात करते हुए, फिर अर्जुन ने अपना विषाद प्रकट किया। उसने 4 चीजें रखी जो युद्ध नहीं करने का कारण। तो उसमें था करुणा, भोग, पाप और जो है संतति का अधर्मी होना, वर्ण संकर पैदा होना। तो ये चारों चीज जो अर्जुन ने अपना तर्क दिया, फिर हम लोगों ने दूसरे अध्याय में कल जो गीता का सारांश में देखा, वो भगवान ने चारों का जवाब दिया। जो हम शरीर नहीं शाश्वत आत्मा है, इसीलिए शरीर के बारे में सोचना जो हम शरीर मरेगा या हम शरीर को मार देंगे, ये मूर्खता है। दूसरा भोग के बारे में बताया, जो तुम युद्ध करो, अगर युद्ध जीत गए तो संपूर्ण पृथ्वी का राज भोग करोगे, और अगर युद्ध हार गए तो स्वर्ग को जाओगे और वहां भी भोग करोगे। तीसरा उन्होंने बताया पाप। चौथा दूसरा हो गया भोग का, तीसरा पाप का। तो पाप के लिए भी उन्होंने बताया जो कैसे हमको जो है 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुणों से, और जो हमने एक साइकिल बताया, जो जब विषय का संयोग इंद्रियों से होता है तो उससे आसक्ति होती है, आसक्ति से लस्ट या भोग की उत्पत्ति होती है, और भोग में व्यवधान होने से, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होने से क्रोध होता है, क्रोध होने से सम्मोह होता है, हम हिप्नोटाइज होते हैं, हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, आत्म संयम खत्म हो जाता है। जब आत्म संयम खत्म हो जाता है तो स्मृति का ह्रास होता है, और जब स्मृति का ह्रास होता है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो हमारा फिर जीवन मरण के साइकिल में फिर हम आ जाते हैं। तो पूरा ही आत्मा का एक तरह से वो मुक्ति असंभव हो जाती है। फिर संतति के बारे में जो भगवान ने बताया, जो ऐसा कुछ नहीं है, तो बुद्धि योग के बारे में बताया, जो अगर बुद्धि एक निष्ठ हो, एक परम पुरुष परमात्मा पर ही बुद्धि को नियंत्रित किया जाए और बहुत शाखाओं में बुद्धि को नहीं लगाया जाए, तो फिर हम परम सत्य को प्राप्त होंगे। तो जो हमारे संस्कार बदल जाएंगे, और अगर हमारे संस्कार ठीक रहेंगे तो संतति भी जो है अधर्मी पैदा नहीं हो सकती है, अनीति का विकास नहीं हो सकता है। तो ये 4 जो है, पहले दिन में अर्जुन ने अपना जो है तर्क दिया, दूसरे दिन भगवान ने ये 4 समाधान दिया।
अब तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रारंभ करता है, जो भगवान आपने तो हमको और ही कंफ्यूज कर दिया। अब आप तो एक बोल रहे हैं जो कर्म, जो ज्ञान योग का जो आपने ज्ञान दिया, जो ये शरीर जो है अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, और वो आत्म साक्षात्कार करो, ये ज्ञान दिया। फिर दूसरा आपने बोला जो युद्ध करो, युद्ध करोगे तो भोग की प्राप्ति होगी, तो आपने सकाम कर्म के लिए बोला। फिर तीसरा आपने बोला जो ये सारा जो है विषय और जो राग है, आसक्ति है और क्रोध है, सम्मोहन है, इस सब से बाहर निकलो। फिर आपने बोला जो तुम परम पुरुष भगवान की का ध्यान करो, उसी को समर्पण करो, तो आपने बुद्धि योग का ज्ञान दिया। तो अब उसको मैं तो कंफ्यूज हो गया। अब जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक रास्ता दिखा रहा है, दिस वे, दैट वे, द अदर वे, अब मैं किधर जाऊं? तो तीसरे अध्याय में अब भगवान उनकी इस शंका का समाधान करते हैं। तो जो भी चार चीज बताया, इसको शास्त्रों में मूलतः दो भाग में बांटा जा सकता है, जितना भी। एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। ज्ञान योग जिसको सांख्य बोलते हैं, सांख्य दर्शन जो है हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू फिलॉसफी में सबसे पुराना ज्ञान योग का है। कपिल मुनि ने लिखा था। कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र थे महाराज कपिल, और उन्होंने सांख्य योग लिखा था। सांख्य योग मीन्स एनालिटिकल, एक एक चीज का विश्लेषण करके और हम आत्मा तक और परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो एक तो उन्होंने बोला जो ज्ञान योग की बात, तो ये जो आप पतंजलि का या कुछ भक्त बोल रहे थे अष्टांग योग, ये अष्टांग योग वगैरह भी ज्ञान योग के ही अंदर आ जाता है। ज्ञान योग का मुख्य माध्यम है ध्यान। ज्ञानी हो या योगी हो, ध्यान दोनों को ही करना पड़ता है। ज्ञानी किस चीज का ध्यान करते हैं? ज्ञानी ध्यान करते हैं जो इंद्रिय का जब विषय से, जैसे आंख का रूप से संपर्क हुआ और वहां जब आसक्ति पैदा हुई, तो उसी समय ध्यान देना है। जैसे ही आसक्ति पैदा हुई, किसी चीज को देखा और वो सुंदर है, उसको पाने की लालसा जगी, तो वहां पर हमको ध्यान देना है जो वो आसक्ति पैदा नहीं होने पाए। अगर आसक्ति नहीं होगी तो लस्ट नहीं होगा, लस्ट नहीं होगा तो सम्मोह नहीं होगा, सम्मोह नहीं होगा तो स्मृति भ्रम नहीं होगा, स्मृति भ्रम नहीं होगा तो बुद्धि नाश नहीं होगा, बुद्धि नाश नहीं होगा तो फिर आत्मा बंधन में नहीं पड़ेगी। तो ये जो है बहुत ही मुश्किल काम है। भगवान बोलते हैं जो तुम अगर जंगल में भी चले जाओ, पहाड़ में भी चले जाओ और ध्यान करो, कर्मों का त्याग कर दो, निष्क्रिय हो जाओ और जाके ध्यान करो, तो क्या होगा? जब आप एक जंगल या पहाड़ में जाके गुफा में बैठ जाएंगे, ठीक है, वहां रूप, रस, गंध, स्पर्श ये नहीं मिलेगा, आपके आंखों को कोई विषय नहीं मिलेगा, नाक को गंध नहीं मिलेगा, कान को सुनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, शरीर को स्पर्श का सुख नहीं मिलेगा, तो आपकी इंद्रियां भटकेंगी नहीं। लेकिन मन तो भटकेगा, मन को आप नहीं रोक सकते हैं। जो भोग आपने पिछले जीवन में किया है, आप जंगल में भी जाके बैठ जाएंगे, पहाड़ में भी जाके बैठ जाएंगे और ध्यान करेंगे, लेकिन मन उन विषयों को याद करके और उस भोग लिप्सा को फिर से भोग करेगा ही। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। एक मिनट प्रभु। अब यहाँ देखिए, भगवान बोलते हैं कर्मेंद्रियानि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अब ये देख रहे हैं, ये कौन है? ये जड़ भरत महाराज हैं। भरत महाराज बहुत ही एग्जॉल्टेड भक्त हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये समझिए मुक्त आत्मा ही है। लेकिन जब ये वन में हैं और देखिए यज्ञ कर रहे हैं, और एक हिरण का बच्चा जो उनके आश्रम में था, कोई हिरनी मर गई थी और उसका बच्चा हुआ। अब इस बच्चा के इन्होंने अपने आश्रम में रख लिया, जो बाहर रहेगा तो शेर खा जाएगा। अब जब भरत महाराज को
इस हिरण से आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया। अब देखिए यज्ञ कर रहे हैं, जबकि ये महापुरुष हैं, मुक्त पुरुष हैं, लेकिन इनका ध्यान उस हिरण की तरफ जा रहा है। और ये अगले जन्म में, और संजोग से इसी हिरण इनके आश्रम में था, और भरत महाराज की जब मृत्यु हुई तो उस समय इनको इस हिरण की चिंता हुई, और अगले जन्म में वो हिरण में पैदा हो। वो चूंकि बहुत ही एग्जाल्टेड डिवोटी थे, ज्ञानी थे, इसलिए हिरण की योनि में भी पैदा होने के बावजूद उनको सब कुछ याद था, पूर्व जन्म याद था, और उन्हें पता था जो क्यों इस हिरण योनि में आए। लेकिन इतने बड़े महान ज्ञानी, योगी या भक्त जो भी बोले, उनको भी थोड़ा सा आसक्ति होने से उनको भी फिर उस योनि में जन्म लेना पड़ा। तो इसीलिए उन्होंने बताया जो ज्ञान मार्ग या योग मार्ग जो है बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तुम कर्म योग करो। अब अर्जुन बोलता है कर्म योग में क्या करें? कर्म योग में भी तो आपने 3 चीज बताया। एक सकाम कर्म, जो युद्ध करो तो स्वर्ग, जीतोगे तो धरा मिलेगी, हारोगे तो स्वर्ग, मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये सकाम कर्म हो गया। फिर आपने बोला जो निष्काम कर्म करो, कर्म करो लेकिन इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसमें कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए, कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु वो मां संगस्त्व कर्मणि। तो फिर आप बोलते हैं जो कर्म के फल का हेतु मत बनो, बट मां संगस्त्व कर्मणि, कर्म करना छोड़ भी नहीं दो। तो फिर ये कैसे संभव है? और तीसरा आपने बताया जो परम पुरुष परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगाओ, एक परम पुरुष में अपनी मन को, बुद्धि को बहु शाखाओं में मत बंटने दो। तो अब आप बताएं, जो आप बोल रहे हैं कर्म करो, तो कर्म में क्या करना है? तो फिर उन्होंने बताया जो तुम यज्ञ करो। अब देखिए यज्ञ में ये भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो हमने प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ये सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न किया, हमने वेदों की उत्पत्ति की, और वेदों में हमने ज्ञान दिया जो क्या नियत कर्म है, क्या करना है, क्या कुशल कर्म है। चूंकि भगवान बोलते हैं नियत कर्मों को करो, तो नियत कर्म क्या है, कुशल कर्म क्या है? तो वो बोले ये वेदों में लिखा हुआ है। तो हमने वेद दिया, हमने ब्रह्मा दिया, हमने वेद दिया, हमने प्रकृति दी। अब वो वेदों में ज्ञान है क्या कुशल कर्म है। अब बोलते हैं जो अन्न जो है, अन्न पैदा करो। अन्न कैसे पैदा होगा? तो अन्न पैदा होगा यज्ञ से, और जब यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी, और बारिश जब होगी तो अन्न पैदा होगा, और जब अन्न पैदा होगा तो उससे हमारा जीवन निर्वाह होगा और हम सुखी रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बताया जो वेदों के हिसाब से नियत कर्म करो, यज्ञ करो। नियत कर्म मतलब यज्ञ करो, यज्ञ करो तो बारिश होगी, बारिश होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो तुम सुखी रहोगे। अब यज्ञ क्या करें? यज्ञ का मतलब होता है भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को समर्पण करना। जो भी चीज का हम उपभोग करेंगे, पीछे के स्लाइड में रहने दीजिए प्रभु, बैक। जो भी चीज का हम उपभोग करेंगे वो भगवान को समर्पित होना चाहिए। चूंकि भगवान ने सबसे शुरू में ब्रह्मा को पैदा किया, देवताओं को पैदा किया, वेद दिया और प्रकृति दी, तो बोलते हैं जो अन्न पैदा करते हो उसको अगर हम खुद भोग करें तो वो फिर सही कर्म नहीं है, वो अकुशल कर्म हो जाएगा, वो नियत कर्म नहीं होगा। इसलिए जो अन्न हम भोग करेंगे उसके पहले उसको हम उन देवताओं को, भगवान को, ब्रह्मा को, विष्णु को अर्पित करके फिर उसका उपभोग करना चाहिए। अब इस अध्याय में यज्ञ के बारे में उतना चर्चा नहीं है, आगे हम लोग 10वें अध्याय में देखेंगे जो यज्ञ के भी कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है,
ज्ञान यज्ञ है, ध्यान यज्ञ है। जैसे जो प्राणायाम करते हैं तो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो वो भी माना जाता है जो भी हम सांसों की आहुति अपने प्राणों में देते हैं, प्राण वायु का द्रव्य यज्ञ हुआ, जो अन्न जो है हम आहुति भगवान विष्णु को देते हैं। फिर उसमें बताया है जो सबसे उत्तम जो है वो जप यज्ञ है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जप यज्ञ में क्या है? जप यज्ञ में आप जब श्रीमद् भागवतम में जाएंगे तो श्रीमद् भागवतम में 11वें कंठों में आता है, यज्ञ संकीर्तन प्रेय यजंती ही सुमेध सा। तो यज्ञों में जो है जप यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है, और जप यज्ञ में महत्वपूर्ण है नाम, भगवान का नाम। क्योंकि जप यज्ञ में बहुत सारे मंत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोग जप यज्ञ करते हैं, या जो यज्ञ करते हैं तो चंडी का, भगवती का, गायत्री का, महामृत्युंजय का आदि जप है, मंत्र यज्ञ। तो जप यज्ञ में भगवान ने बताया है, ऑफ कोर्स इस चैप्टर में नहीं है, इसका हम लोग आगे विशद चर्चा करेंगे। आज हम लोग इतना ही समझते हैं, यज्ञों में सबसे उत्तम जो है जप यज्ञ, और जप यज्ञ में श्रीमद् भागवतम बोलते हैं जो है नाम यज्ञ, जिसको बोलते हैं यज्ञ संकीर्तन प्रेय। संकीर्तन, नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन, भगवान का मूल नाम जो है कृष्ण, और उनके बहुत अवतार हैं, जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की, 12 हैं, नरसिंह देव हैं, हरि हैं, वासुदेव हैं, उपेंद्र हैं, अधोक्षज हैं, पुरुषोत्तम हैं, अच्युत हैं, हाँ, संकर्षण हैं, प्रद्युम्न हैं। तो उनका मूल जो है भगवान कृष्ण स्वयं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, और बाकी उनके बहुत सारे अवतार हैं। तो भगवान का मूल नाम है कृष्ण। और बलराम, बलराम उनके विस्तार हैं, जो हमेशा उनके साथ सेवा रूप में रहते हैं। जैसे भगवान राम बन के आए तो बलराम लक्ष्मण बन के आए, जब कृष्ण स्वयं आए तो बलराम उनके साथ आए। तो इस तरह से जब भगवान जाते हैं तो बलराम उनके साथ हमेशा रहते हैं। जैसे विष्णु रूप में जब आए तो अनंत शेषनाग के रूप में वो है उनकी सेवा में, तो बलराम हमेशा उनकी सेवा में रहते हैं। तो राम जो है वो बलराम को इंगित करता है, कृष्ण स्वयं है, और हरे जो है राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति जो उनकी सच्चित आनंद बोलते हैं, जो आनंद शक्ति है, वो राधा रानी है, हरे। और बहिरंगा शक्ति जिससे ये पूरा संसार बना है। तटस्था शक्ति आत्मा, आत्मा भी उनका अंश है, तो इसको तटस्था या न्यूट्रल फोर्स बोला जाता है। तो उनके 3 फोर्स हुए, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स एंड न्यूट्रल फोर्स। ठीक है। तो ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का मूल नाम है। अगर भगवान के बहुत अनंत नाम है, आप विष्णु सहस्त्र नाम देखते हैं, उसमें हजारों नाम उनके दिए गए हैं, लेकिन ये नाम जो है मूल है, और ये सर्वोत्तम मंत्र है। तो इसीलिए अगर जप यज्ञ करना है तो नाम जप करना है, नाम जप भी करना है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन की स्थापना की, यहाँ आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। ये जो आप मध्य में देख रहे हैं, जो हाथ फैलाए हुए नृत्य कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु, इनफैक्ट ये भगवान श्री कृष्ण ही है। और ये नित्यानंद प्रभु हैं जो बलराम हैं, और ये सब पार्षद हैं उनके। तो इसमें नारद जी हैं, ये महाविष्णु हैं, अद्वैताचार्य हैं, ये आपको राधा रानी है, ये श्रीवास नारद जी के अवतार हैं। तो जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो उनके सभी पार्षद जो है उनके साथ इस धरती पर आते हैं। और आज से करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था। ये स्वयं कृष्ण है, लेकिन इनका अवतरण भक्त के रूप में हुआ, क्योंकि कलयुग में भगवान स्वयं नहीं आते, इसलिए भगवान को त्रिजुगी बोला जाता है। त्रिजुगी मतलब वो सतयुग,
त्रेता और द्वापर में स्वयं आते हैं विभिन्न रूपों में, लेकिन कलयुग में नहीं आते हैं। आज से 5000 साल पहले जब कृष्ण आए तो उस समय द्वापर था, वो गए, उसके बाद बहुत दिनों तक युधिष्ठिर जी ने राज किया, परीक्षित महाराज ने राज किया, उसके बाद कलयुग का आगमन हुआ। तो कलयुग में भगवान स्वयं नहीं आते हैं, इसलिए उनको चतुर्युगी नहीं कहा जाता है, उनको त्रियुगी कहा जाता है। और इसलिए चतुर्युग में आते हैं तो वो प्रच्छन्न रूप में आते हैं, भगवान बोल के नहीं आते हैं मैं भगवान, तो ये भक्त के रूप में आए और इन्होंने ही ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया, भगवान ने स्वयं आकर के दिया और ये ज्ञान दिया। तो इस्कॉन जो है की स्थापना चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए ज्ञान के ही आधार पर श्रील प्रभुपाद ने गुरु परंपरा माध्यम से किया। चैतन्य महाप्रभु से जो परंपरा चली, गुरु शिष्य परंपरा से 500 साल तक उसको अक्षुण्ण रखा गया और प्रभुपाद ने इसको आगे विस्तारित किया। तो लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप जपते हैं तो इसके पहले आप देख रहे हैं ऊपर एक लिखा हुआ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य, ये श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं है भगवान, प्रभु नित्यानंद, उनके बगल में नित्यानंद जो है वो नित्यानंद ये बलराम के अवतार हैं। श्री अद्वैत ये महाविष्णु और महाशिव के संयुक्त अवतार हैं। और गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है। और श्रीवास जो है नारद है। गौर भक्त वृंदा और जो चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव शिष्य हैं। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के पहले ऐसा प्रावधान है, जो ये महातत्व पंच तत्व मंत्र जो है इसका 3 बार कम से कम उच्चारण करने के बाद ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फाइनली यही बताया, जो यज्ञ करो, यज्ञ में भी जो है जो अन्न उत्पन्न होता है उसको भगवान को, विष्णु को और सभी देवताओं को, ब्रह्मा को समर्पण करके फिर उसका भोग करो। यहाँ पर जो है ये कैसे जप करना है, यज्ञम जपा यज्ञोस्मि, ये भगवत गीता में भी फिर 10वें अध्याय में जैसे हमने बोला ना, जो वहाँ बहुत सारे यज्ञों का वर्णन है, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ वगैरह, तो उसमें वही बोलते हैं जो यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। ठीक है, और ये अभी आपको क्लियर दिखाई देगा, फोटो में नहीं दिखाई दे रहा होगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इसको 3 बार पहले हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो है प्रार्थना करते हैं हम महाविष्णु को, राधा रानी और जो उनके और भी पार्षद हैं। ये पंच तत्व महामंत्र का जप करने के बाद ही ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यज्ञाशिष्ट न संतो मुच्यते सर्व किल्बिषा भुंज्यते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। ये भी 3रा अध्याय में है। जो वो अन्न, जब हमने नियत कर्म किया, यज्ञ किया, यज्ञ करने से बारिश हुई, बारिश से अन्न पैदा हुआ, तो उस अन्न को यज्ञा शिष्टन संतो मुच्यते सर्व किल्बिषा, अगर उस अन्न को हम भगवान को अर्पित कर दें तो वो अन्न जो है पापों से रहित हो जाता है। भुजन्ते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। और जो भोजन बनाते हैं और स्वयं खाते हैं, भगवान को नहीं देते हैं, तो वो पाप का भक्षण करते हैं। अब आप कहेंगे जी इसमें पाप कहां से आ गया, अन्न में पाप कहां से आ गया? आप देखेंगे अन्न को पैदा करने में और अन्न को भोजन में परिवर्तित करने में, उसको बनाने में, उसको सिद्ध करने में, अग्नि पर सिद्ध करने में जीवों की हत्या होती है, जाने अनजाने होती है। हम जान करके हत्या नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप कोई भी पाप नहीं करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप हिंसा नहीं करते हैं, आप चोरी नहीं करते हैं, आप नशाखोरी नहीं करते हैं, आप व्यभिचार नहीं करते हैं, आप जमाखोरी नहीं करते हैं, सारे यम नियमों का पालन करते हैं, फिर भी ये पाप अनजाने में हो जाता है। चूंकि
बिना भोजन के अगर कोई निष्काम कर्म भी करेगा तो बिना भोजन के तो नहीं रख सकता है। जो ज्ञान मार्ग योग मार्ग में जो ध्यान भी करता है, भोजन की आवश्यकता उसे भी होती है। भले उसको 7 दिन में 1 दिन खाता हो, 7 दिन में 1 दिन पानी पीता हो, लेकिन भोजन और जल की आवश्यकता तो ज्ञानियों और योगियों को भी होती है, अवधि चाहे जो भी हो। तो इन पापों से जो अन्न को उत्पन्न करने में जीवों की हत्या होती है और अन्न को सिद्ध करने में, भोजन बनाने में जो जीवों की हत्या होती है, उसके पाप का भागी हमको होना ही पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जैन मुनि जो सिद्ध मुनि होते हैं, महामुनि होते हैं, वो मुंह पर पर्दा बांधे रहते हैं, नाक पर पट्टी लगाए रहते हैं, जिससे उनके जो है कोई जीव उनके मुंह या नाक में नहीं चला जाए और मर जाए, या उनके सांसों की गर्मी से कोई जीव नहीं मर जाए। वो शाम को 5 बजे के पहले खाना खा लेते हैं, रात में कोई दिया बत्ती नहीं जलाते हैं, क्योंकि दिया बत्ती जलाएंगे तो कीड़े मकोड़े पतंगे आएंगे, मर जाएंगे। रात में दिया जला के खाना बनाएंगे तो पतंगे मर जाएंगे। वो लोग जो है जमीन के नीचे का साग सब्जी नहीं खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, आलू, प्याज, ये सब नहीं खाते हैं। जो जमीन के नीचे का जो है कंदमूल निकालने में उसमें जीव मारे जाते हैं। तो ये तो संभव नहीं है, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान ने ये बहुत ही आसान उपाय दिया, जो भी भोजन अन्न उत्पन्न करते हो, जो भी भोजन बनाते हो, वो भगवान के लिए बनाओ, भगवान को समर्पण करो, भैया आपके लिए बनाए हैं, खाइए, और जो उच्छिष्ट भगवान ने छोड़ा उसको हम खाएंगे। जब भगवान के लिए बनाए तो वो पाप के भागी भगवान होंगे। चूंकि कर्म फल, कर्तापन से पाप नहीं लगता है। कर्म फल जो है वो जो काम हम करते हैं उसके प्रति जो आसक्ति है वो कर्म बंधन पैदा करता है। जैसे आपने किसी रूप को देखा और रूप अच्छा लगा, तो इससे कर्म बंधन नहीं बनता है। उस रूप को बार बार पाने की इच्छा, बार बार भोगने की इच्छा जो स्मृति पटल पर संचित हो जाता है, तो उसको कर्म बंधन बताया जाता है। इसलिए ये कर्म बंधन को समझना बहुत ही आवश्यक है। जो कर्म बंधन कैसे हो, जैसे मान लीजिए आप कभी शहर में जा रहे हैं और आपको बहुत तेज भूख लगी, आप किसी रेस्टोरेंट में घुस गए, खाना खाया, वहां का खाना आपको बहुत अच्छा लगा। अब 1 सप्ताह बाद आप फिर उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उस दिन आपको भूख नहीं है, लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट देखा तो आपके स्मृति पटल पर वो हो गया, अरे यहाँ का तो खाना बहुत अच्छा था, और आज भूख नहीं है फिर भी खाने के लिए घुस गए। तो इसको कर्म बंधन बोलते हैं। जो एक बार आपने जो भोग किया, वो भोग अच्छा लगा, उसके प्रति आपकी जो है स्मृति पटल पर एक बंधन हो गया, जो ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। अब वो जो कार्य उस दिन खाने का हुआ, आज वो कारण बन गया, और उसके बाद आपने खाने का कार्य फिर किया। इसी को कार्य कारण सिद्धांत बोलते हैं। जो कैसे एक बार जो कारण होता है वही फिर कार्य हो जाता है, फिर वही कार्य कारण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए अगर अन्न उत्पन्न हम स्वयं के लिए करें, अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए, अपने शरीर की आपूर्ति के लिए, तो फिर वो कर्म फल बंधन पैदा करेगा। लेकिन वही अन्न हम और भोजन भगवान के लिए बनाए, जो भगवान को खिलाना है, और उनको खिलाने के बाद जब प्रसाद बचा तो खाएंगे, तो हमारा जो है वो, चूंकि इसमें हमारी जो इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की है, तो इसलिए उसका कर्म बंधन हमको नहीं लगेगा। इसलिए अन्न पैदा करने में और उसका भोजन बनाने में जो जीवों की हत्या हुई, उसके पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट। अब जो है हमारे शरीर को 5 भागों में बांटा गया है, दिखाया गया है जो हम लोग कैसे बंधन में हैं। तो एक तो है हमारा शरीर, उसके बाद शरीर में सेंस ऑर्गन्स 5, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेंटल प्लेटफॉर्म, मन, शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर मन है, फिर इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, बुद्धि है, फिर आत्मा है। कुछ कुछ विद्वान जो है, कुछ कुछ शास्त्रों में इसको कोषों में बांटा गया है। जैसे शरीर को बोला जाता है अन्नमय कोष, ज्ञानेंद्रिय जो है उसको प्राणमय कोष। चूंकि ज्ञानेंद्रिय तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि शरीर में
प्राण नहीं हो। आपको अगर प्राण कहाँ से आता है? प्राण भोजन से मिलता है, प्राण जल से मिलता है, प्राण वायु से मिलता है, प्राण धूप से मिलता है। तो इन चीजों से प्राण मिलता है। अगर आपको भोजन देना बंद कर दिया जाए, पानी देना बंद कर दिया जाए, हवा देना बंद कर दिया जाए, तो हवा देना बंद कर जाएगा तो आप तो ज्यादा दिन चल नहीं सकते। शरीर बिना प्राण के नहीं चल सकता है। ज्ञानेंद्रिय बिना प्राण के, ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रियां बिना प्राण के काम नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए आपको अगर खाना पीना बंद कर दिया जाए तो आपका रूप, रस, गंध, स्पर्श कुछ लेने की इच्छा नहीं होगी, ले ही नहीं सकते हैं। आपका आंख ही नहीं काम करेगा, नाक ही काम नहीं करेगा। तो इसीलिए शरीर का दूसरा लेयर जो है ज्ञानेंद्रिय को कुछ लोग प्राणमय कोश भी बोलते हैं। तीसरा, प्राण के पीछे भी मन है, तो इसको मनोमय कोश बोलते हैं। मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे आत्मा है। तो एक मिनट पीछे रहने दीजिए। अब ये हायर प्लेटफॉर्म है। शरीर जो है सबसे नीचे है, शरीर से ऊपर ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय से ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो कंट्रोल कैसा होना चाहिए? आत्मा को बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए, बुद्धि को मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन को ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करना चाहिए, ज्ञानेंद्रिय को शरीर को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमने देखा, जो ये प्रकृति में विषय है, विषय वस्तु हैं, ज्ञानेंद्रिय और विषय वस्तु का संयोग हुआ कि राग पैदा हुई, आसक्ति पैदा हुआ, सम्मोह पैदा हुआ, स्मृति भ्रम पैदा हुई, बुद्धि, स्मृति का नाश हुआ, बुद्धि का नाश हुआ। तो अभी कंट्रोल क्या कर रहा है? अभी हमको कंट्रोल कर रहा है ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के विषय, और उसके द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं और आत्मा जो है बंधन में बंध जाती है। तो हमको इसको उल्टा करना है। इसमें फिर भगवान ने बोला है, इंद्रियाणि प्राणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसास्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतः तुषा। ठीक है, तो ये बता रहे हैं जो कैसे इंद्रिय से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, परतः तुषा मतलब आत्मा है, सबसे ऊपर आत्मा है। नेक्स्ट। अब ये आप लोगों ने देखा होगा, भगवत गीता के ऊपर भी कभी कभी ये फोटो छिपा रहता है। ये जो श्लोक आपने देखा तो उसी का ये चित्रण किया गया। जो एक रथ है, उस रथ में 5 घोड़े जुते हैं और उस पर एक सारथी बैठा है जिसके हाथ में लगाम है और पीछे एक आदमी बैठा है। ये हमारे शरीर को पूर्ण तरह से चित्रित करता है। ये घोड़े जो हैं ये क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं, और लगाम जो है मन है, और सारथी जो है बुद्धि है, और जो रथी है, जो रथ पर बैठे हैं पीछे में, वो आत्मा है। अब कैसे कंट्रोल करते हैं? घोड़ा को अगर छोड़ दिया जाए, लगाम ढीला कर दिया जाए, तो घोड़ा को जहां मन होगा जाएगा। तो लगाम को टाइट करना। अगर आप चाहते हैं जो हमारे जीवन को, हमारी ज्ञानेंद्रिय और ये प्रकृति के जो 5 विषय हैं, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, स्वाद है, शब्द है, ये हमको आकर्षित नहीं करें। घोड़ा अपनी मर्जी से जहां मर्जी हो नहीं जाए तो लगाम को कसना पड़ेगा। लेकिन लगाम को कौन कसेगा? वो बुद्धि उसको टाइट करेगा। अगर बुद्धि नहीं कर पाएगी, बुद्धि कमजोर होगी, तो फिर घोड़ा को जहां मन होगा जाएगा। तो अब ये रथ को बुद्धि चला रहा है, रथी नहीं चला रहा, रथी के कंट्रोल में नहीं है। हालांकि रथी ही बोलेगा बुद्धि को जो किधर ले जाना है, लेकिन बुद्धि मजबूत हो जाती है। जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो बुद्धि अपने मन से ले जाता है। तो इसीलिए बुद्धि की जगह में किसको बैठाना पड़ेगा? विवेक को। बुद्धि और विवेक में फर्क है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेलिजेंस एंड विजडम। विवेक का मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस है, जो डिस्क्रिमिनेट कर सके क्या सही है, क्या गलत है, क्या नियत कर्म है, क्या अनियत कर्म है, क्या कुशल कर्म है, क्या अकुशल कर्म है, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
जो बुद्धि ये डिसाइड कर सकती है तो उसको बोलते हैं विवेक। अगर नहीं कर सकती है, जो बहुत तेज हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, बहुत पढ़ा है, बहुत डिग्रियां हासिल की हैं, वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानेंद्रियों से संचालित होते हैं, मन बुद्धि को चलाता है, तो वो बुद्धि को विवेक नहीं बोल सकते हैं। और जब आप विवेक में स्थित होंगे तो फिर आपका रथ सही चलेगा। इसलिए अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने युद्ध में सारथी किसको बनाया? भगवान को बनाया। तो यही बुद्धि योग है, जो हमने अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दिया। तो चलिए, बुद्धि की जगह भगवान आप बैठ जाइए और आप लगाम आपके हाथ में देते हैं, अब आप चलाइए। तो जब भगवान बैठ जाएंगे तो इसी को बोलते हैं बुद्धि योग। वो हमेशा रथ को सही जगह ले जाएंगे। तो भगवान ने जो हम लोग दूसरे अध्याय में कल देखा, जो उसमें उन्होंने बोला, जो बुद्धि योग, अपने आप को भगवान में लगा दो। भगवान ही एक लक्ष्य है, भगवान की खुशी ही एक लक्ष्य है, और भगवान जो बोलते हैं वो करो। फिर एक शंका थी, जो भगवान से हमारी बातचीत नहीं होगी तो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हमने कल चर्चा की थी, जो भगवान ने 12 महाजनों को अधिकृत किया है, वो क्या क्या था? स्वयंभू ब्रह्मा, नारद, शंभु, 4 कुमार, कपिल, मनु, 10 मनु हैं, जैसे अभी हम लोग वैवस्वत मनु के काल में हैं। फिर प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव महाराज और यमराज। यमराज और धर्मराज एक ही हैं, यमराज को ही धर्मराज भी बोलते हैं। तो ये 12 जन, और ये 12 जनों की क्या चाहते हैं? उन्होंने धर्म का ज्ञान कहाँ दिया? श्रीमद् भागवतम 18वां महापुराण में। और फिर उन्होंने गुरु भेजा है इस धरती पर, उन्होंने गुरु भेजा है। तो जो गुरु परंपरा से आया हो, जो गुरु कृष्ण के ज्ञान दिए हुए ज्ञान को बताता हो एज इट इज, यथारूप, तो उस गुरु से हम जो है निर्देश ले सकते हैं, जब तक कि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से नहीं होता है। तो जब आप विवेक को बैठा देंगे तो आत्मा बहुत मजबूत हो जाएगी। अब ये रथ उल्टा चलेगा। आत्मा जो चाहेगा बुद्धि वो करेगी, बुद्धि उसी हिसाब से लगाम टाइट करेगी, और घोड़ा उधर जाएगा जिधर आत्मा चाहेगी, जिधर बुद्धि जाएगा। तो ये चित्र से समझने में आसानी होगी। तो इसलिए भगवान ने बोला, जो तुम कर्म करो। कर्म में, अब कर्म के 3 भाग हो गए। सकाम कर्म, जैसे बोला युद्ध करो स्वर्ग मिलेगा, मरोगे तो, जिंदा रहोगे तो राज मिलेगा, तो वो सकाम कर्म हो गया। तो सकाम कर्म नहीं करना है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म में है कर्म तो करना है, लेकिन कर्म का फल हमको नहीं चाहिए, बिना इच्छा के करना है, और अटैच नहीं होना है। ज्ञानेंद्रियों का विषय से संयोग तो होगा, रूप से स्पर्श होगा, गंध से स्पर्श होगा, रस से स्पर्श होगा, शब्द से स्पर्श होगा, लेकिन आसक्त नहीं होना है। ये भी बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। निष्काम कर्म, कम से कम अपना खाने पीने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, अन्न तो लाना ही पड़ेगा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, मलमूत्र त्याग करना ही पड़ेगा। तो बिना कर्म के रहना प्राय असंभव है। तो इसलिए उन्होंने तीसरा मार्ग दिया बुद्धि योग का, या जिसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति में क्या किया? जो कर्म करेंगे लेकिन कर्मों की दिशा बदल देंगे। जो भी कर्म करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी कर्म योग के अंदर ही आता है। तो कर्म के 3 माने हुए, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और भक्ति या बुद्धि योग। तो हम उन्होंने फाइनली बताया, जो तुम कर्म योग को ही करो, ज्ञान योग छोड़ दो। क्योंकि ज्ञान योग में विश्वामित्र ऋषि का आप उदाहरण जानते हैं, वो बहुत बड़े योगी थे। उनका वो स्वर्ग जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, उतना शक्ति था उनको, लेकिन वो भी पथभ्रष्ट हुए। क्योंकि ज्ञान योग में आप ठीक है संसार से दूर चले गए, रूप रस गंध स्पर्श वहां नहीं मिलेगा, लेकिन मन तो है, और मन में जो पूर्व के संस्कार संचित हैं वो आपको कभी भी पथभ्रष्ट कर सकता है। तो इसलिए ज्ञान मार्ग और योग मार्ग में पथभ्रष्ट होने की संभावना रहती है। मुक्त होने के बाद भी जो वहाँ एक रास्ता की वजह से वो फिर से मनुष्य जोनि में गिरते पाए जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने फाइनली उनको यही सलाह दिया,
जो तुम कर्मयोग करो और कर्मयोग में भक्ति मार्ग का अवलंबन करो। तो इसीलिए यज्ञ जो है, तुम जो भी भोजन बनाते हो, जो भी, वो भगवान को अर्पण करके ग्रहण करो। नेक्स्ट। फिर वो बोलते हैं जो युद्ध करने के लिए उन्होंने बोला, तो वही बोलते हैं यदा यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोका तद अनुवर्तते। अब यहाँ देखिए, जो ये चिड़िया है, अब बड़ी वाली चिड़िया जो है वो जिधर जाएगी पीछे पीछे ये सब उसके पीछे जाएंगे, इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं जाएगा। तो ये बोलते हैं जो श्रेष्ठ लोग हैं वो जो आचरण करते हैं तो पूरी की पूरी प्रजा उनका ही अनुसरण करती है, उनके पीछे चलती है। तो बोलते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो फिर तो बाद में कोई भी युद्ध नहीं करेगा, धर्म की रक्षा के लिए कोई भी नहीं उठेगा, तो पूरी संतति कायर हो जाएगी। वो सब तुम ही को देख करके तुम जो करोगे तो आने वाली संतान उसी का अनुसरण करेगी। इसलिए तुम युद्ध करो, तुम भोग के लिए युद्ध मत करो, तुम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए युद्ध मत करो, तुम राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध मत करो, तुम सिर्फ हमको ध्यान में रखो, ये भगवान की इच्छा है, हमने तुमको बोला है युद्ध करने के लिए और हमारी इच्छा के लिए, तुम हमारी खुशी के लिए युद्ध कर रहे हो, इस भाव से युद्ध करो, ये सकाम कर्म भी भक्ति कर्म हो जाएगा। लेकिन तुम अगर युद्ध छोड़ दोगे तो फिर इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा और आने वाले लोग जो है, तुम जो श्रेष्ठ जन हो, तुम हमारे मित्र हो, तुम पांडवों में सबसे अग्रणी हो, वीर हो, और तुम जैसा कर्म करोगे तो वो भी सभी लोग तुम्हारा ही अनुगमन करेंगे। तो इसीलिए तुम युद्ध करो किंतु सकाम भाव से नहीं। नेक्स्ट। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं जो धूमन आवृते वहनी यथादर्शो मलेन च यथा उल्वेन अनावृतो गर्भः तथा तेनेदम आवृतम। बोलते हैं जो जैसे अग्नि धुएं से आवृत है, दर्पण, अब देख रहे हैं ये अग्नि है, अग्नि में धुआं है, तो धुआं जब रहेगा तो अग्नि पूरा दिखाई नहीं देगी। ये दर्पण है, दर्पण पर धूल है, तो उस दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब ठीक तरह से नहीं देख सकते हैं। ये भ्रूण है जो गर्भ में आवृत है। तो वैसे ही बोलते हैं जैसे अग्नि धुएं से आवृत है, दर्पण धूल से आवृत होता है और भ्रूण गर्भ में आवृत होता है, वैसे ही हमारी आत्मा शक्तिमान होते हुए भी, सच्चित आनंद होते हुए भी, भगवान का अंश होते हुए भी काम से आवृत है, रजोगुण से आवृत है। कल हम लोगों ने 3 गुणों की चर्चा की थी। जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जो प्रकृति है, प्रकृति में 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पांचों के गुण, रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द आदि की चर्चा हम लोगों ने की थी और इसी से ये विषय हुआ और इससे कैसे हम लोग का अटैचमेंट होता है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 तरह के तमोगुण जो है वो विषय भोग के प्रति आकृष्ट करता है। जैसे पशु हैं वो सारे पशु तमोगुणी हैं, लेकिन मनुष्य में तमोगुणी भी होते हैं, रजोगुणी भी होते हैं और सतोगुणी भी होते हैं। जिनका सिर्फ भोग में आसक्ति रहती है वो तमोगुणी है। रजोगुण क्या होता है? जब थोड़ा आदमी विकसित होता है, जब उसका ज्ञान होता है, माइंड विकसित होता है, तब उसको धन और पद की लालसा होती है। भोग तो करते ही, वो तमो और रजोगुण दोनों होता है। ऐसा नहीं है जो थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा ज्ञान हो गया तो खाना छोड़ देते हैं, गाना सुनना छोड़ देते हैं, टीवी देखना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। तमोगुण में थोड़ी कमी आती है, रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण का मतलब धन और पद और यश की लालसा, ये भोग के सिवा, इसलिए इसको रजोगुण बोला जाता है। ये शक्ति अहंकार को बड़ा करती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या बहुत ज्ञान नहीं है, पशु तुल्य हैं, उनको खाना पीना देते रहिए, दिन में 100 रुपया कमाएंगे, शाम को खाना खाएंगे, ठर्रा पिएंगे, सो जाएंगे, फिर कल होकर के उठेंगे, फिर काम करेंगे।
तो उनको है धन जमा करने की, पद की, यश की कोई लालसा नहीं है, तो वो शुद्ध तमोगुणी है। तो ऐसे लोग को पशु के समान ही माना जाता है। लेकिन जिसमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो थोड़ा सा जानना चाहते हैं, अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो रजोगुण में आते हैं। और सतोगुण हुआ जो ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो आदमी जानना चाहता है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस पूरी सृष्टि का जो है निर्माता कौन है, रचयिता कौन है, नियंता कौन है, नियामक कौन है, कौन रेगुलेट करता है, ये कैसे चलता है, सुख और दुख क्या है, पाप और पुण्य क्या है, हमारा जन्म मरण क्या होता है, हम कोई सुखी क्यों होता है, कोई दुखी क्यों होता है, कोई गलत काम करके भी सुखी है, कोई सही काम करके भी दुखी है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो खोजता है, तो उसको जो है सतोगुणी बोला जाता है। और वेदांत सूत्र तो यहाँ तक बोलता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करता है वो मनुष्य है ही नहीं, वो पशु की ही श्रेणी में आता है। तो रजोगुणी को भी पशु के ही श्रेणी में रखते हैं, जो भी हो। तो यहाँ वो बता रहे हैं जो जैसे दर्पण या अग्नि या भ्रूण एक एक चीज से, धूल से, धुएं से और गर्भ से आवृत है, वैसे ही हमारी सच्चित आनंद स्वरूप जो भगवान का अंश है, वो आत्मा ये रजोगुण से उत्पन्न काम से आवृत है। यहाँ ऐसा भी तुलना कर सकते हैं, जैसे आत्मा तो वृक्ष में भी होती है, लेकिन वृक्ष हिल डुल नहीं सकता है। ये भ्रूण जो है, ये समझिए ये भी वृक्ष की तरह है। आत्मा तो है, जीव तो है, कॉन्शसनेस तो है, लेकिन ये हिल डुल नहीं सकता है। 9 महीने तक बस हाथ पैर ऐसे ही बंधा रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये वो जीवात्माएं हैं जो पेड़ पौधे हैं। ये दर्पण, इसको आप जो है पशु पक्षी से कर सकते हैं तुलना। पशु पक्षी जो पूरे तमोगुण में है, लेकिन चल फिर सकते हैं, तो सोच नहीं सकते हैं, अपने को मुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा धूल को साफ किया जा सकता है। और ये जो है मनुष्य है, तो ये जीवात्माओं में जो तीन, ये हो गए पेड़ पौधे, ये हो गए पशु पक्षी, ये हो गया मनुष्य। तो मनुष्य में आप देखेंगे जो धुआं है तो भी नीचे थोड़ा अग्नि दिख रही है। और जैसे जैसे आप ये गीता को समझेंगे और इसका पालन करेंगे, तो आप देखेंगे अग्नि प्रज्वलित होती जाएगी और धूल खत्म होते जाएगा। धूल का आवरण, ये धुएं का आवरण खत्म होता जाएगा। तो अब अगर आज से आप जप यज्ञ या बुद्धि योग या नाम जप करना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 ये धूम जो है, धुआं समाप्त होने की संभावना बढ़ते जाएगी। तो इसीलिए जो पक्षी या पशु की संभावना नहीं है जब तक कि वो मनुष्य योनि में नहीं आए। लेकिन जो मनुष्य योनि में है और तमोगुण में है, तमो रजोगुण में है या रजोगुण में है या तमो रजो सतो में है, तो हमको कोशिश करनी है जो हम पूर्ण रूप से सतोगुण में आए। पूर्ण रूप से सतोगुण में आने के लिए तमो और रजो को खत्म करना पड़ेगा। रजोगुण को खत्म करने के लिए हमारी जो अहंकार है, अहंकार मतलब पद की इच्छा, धन की इच्छा और यश की इच्छा, ये तीनों इच्छा कम करनी होगी। इसमें आनंद, वस्तुतः कोई आनंद नहीं है। और तमोगुण के लिए जब विषय वस्तु का ज्ञानेंद्रिय से संयोग होता है और उसमें आसक्ति पैदा होती है, उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन कैसे कम करेंगे? भोजन में तो आनंद है, रूप रस गंध स्पर्श में आनंद है। तो कोई भी आदमी एक आनंद को, एक सुख के साधन को तभी छोड़ सकता है जबकि उसको उससे उच्चतर आनंद का माध्यम दिया जाए। तो भगवान का जो आनंद है, परमात्मा आनंद जो है, वो इस भौतिक आनंद से बहुत ही ऊपर है, बहुत ही महती है। तो इसीलिए आप जब जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे, नर्तन करेंगे, तब आपको जिस आनंद की अनुभूति होगी, तब आपको समझ में आ जाएगा ये रूप रस गंध स्पर्श का आनंद कुछ भी नहीं है। और जो परमात्मा या भगवान से जो आनंद निःसृत होता है, उसको आत्मा डायरेक्ट ग्रहण कर सकती है।
जैसे भोजन का आनंद आत्मा डायरेक्ट नहीं ले सकती है। भोजन हम मुंह से करेंगे, जीभ उसका स्वाद चखेगा, जीभ से मन लगा हुआ है, मन में भी एक टेस्ट की फैकल्टी है। तो जो मन में इंद्रियां हैं उस स्वाद को जो है बुद्धि के पास ले जाएगा। बुद्धि बोलेगा हाँ ये बहुत ही अच्छा स्वाद है या खराब स्वाद है, तो फिर अहंकार जो है शरीर पर एक जो है रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, शरीर में एक अच्छा सा अनुभव होगा, तब आत्मा उसको अनुभव करेगी। तो आत्मा को इस भौतिक सुखों, रूप रस गंध स्पर्श जो भी हो, जैसे कोई रूप देखते हैं, रूप देखते हैं तो रूप जो है वो आंख देखती है, आंख आनंद नहीं लेती है। आंख उसको जो मन में जो आंख का फैकल्टी है, मन में एक माइंड में एक कोष है जो देखने का काम करती है, वो उस तरंग को ले जाएगा बुद्धि के पास। बुद्धि बोलेगा हाँ बहुत सुंदर रूप है। जब बुद्धि ऐसा बोलेगा तब फिर शरीर में एक प्रतिक्रिया होगी उस रूप के प्रति, और फिर आत्मा उसकी अनुभूति करेगा। इसलिए इस भौतिक जो 5 विषय वस्तु हैं उसका आनंद आत्मा बिना शरीर, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार इसके थ्रू ही उस आनंद का अनुभव कर सकती है। लेकिन चूंकि आत्मा और परमात्मा या भगवान एक ही तत्व है, आत्मा भगवान का ही स्फुलिंग है। भगवान अगर सूर्य है तो आत्मा सूर्य की किरण है। इसलिए भगवान से जो निःसृत होता है रूप रस गंध स्पर्श का आनंद, वो आत्मा डायरेक्ट परसीव कर सकती है। तो इसीलिए आत्मा को जब तक हम सुपीरियर आनंद का क्षेत्र नहीं देंगे तो फिर इस भौतिक आनंद को क्यों छोड़ेगा और कैसे छोड़ेगा। तो इसीलिए भगवान ने बताया जो नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या है? तो यज्ञ करो। यज्ञ में भी क्या करो? जप यज्ञ करो। जप यज्ञ में नाम यज्ञ करो। और जो भोजन पैदा होता है वो देवताओं को, विष्णु को, भगवान को समर्पित करो, जिससे कि तुम पाप कर्म बंद कर भी दोगे तो अन्न उपजाने में और भोजन बनाने में जो पाप होता है उस पाप से भी मुक्त हो जाओगे। और जब भगवान के भक्ति में आगे बढ़ जाओगे तो फिर तुम्हारे जो संचित कर्म है, कल जैसे एक प्रभु ने पूछा था ना, जो हमारे जो संचित कर्म है, प्रारब्ध, पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के भी कर्म है, उन कर्मों से कैसे मुक्ति मिलेगी। हम आज से ठीक है अच्छा कर्म, यज्ञ करना, भगवान को भोजन अर्पित करना, नाम जप यज्ञ शुरू तो कर दें, लेकिन उनसे कैसे मुक्ति मिलेगी। तो उनसे मुक्ति जो बताया था हमने कल, योगी और ज्ञानियों को उससे मुक्ति मिलेगी तपस्या करके। उनको सैकड़ों हजारों साल तपस्या करना पड़ेगा और कितने संस्कार उनके स्मृति पटल पर जमा हैं उन सबों को शरीर पर भोगना पड़ेगा। पतंजलि के योग दर्शन में एक सूत्र आता है, ते प्रति प्रसव सूक्ष्मा। जो सूक्ष्म संस्कार हमारे मनस पटल पर हैं उनको जो है प्रसव कराना पड़ेगा, ध्यान करके, और उसको जो स्मृति में है उस सबको निकाल के शरीर पर लाएंगे, शरीर पर कष्ट भोगेंगे, ताप का हर तरह का कष्ट शरीर पर होगा, तो एक एक करके संस्कार निकलते जाएंगे। इसीलिए पहले लोग जो है हजारों साल तक तप करते थे ना, उन संचित कर्मों को भोगने के लिए। लेकिन कल युग में तो हमारी आयु हुई 100 साल है, 100 साल भी लोग नहीं जीते हैं, तो ये सब संभव नहीं है जो तप करके हम संचित कर्मों को का नष्ट करें। तो इसलिए भगवान ने बोला, लेकिन जो भक्ति में जो भगवान को समर्पण कर देता है, तो स्वतः जब आपने भगवान को समर्पण कर दिया तो आपका मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा सब भगवान को समर्पित होगी। तो उसके साथ साथ जो संचित संस्कार है वो भी भगवान को समर्पित हो गए, तो वो आप उससे स्वतः मुक्त हो जाएंगे। तो ये संभावना सिर्फ जो है बुद्धि योग में है, भक्ति में है, जिसमें आपके संचित कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। तो जो है भगवान की प्राप्ति की गति को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट। यस प्रभु, नेक्स्ट। या तो अभी हम लोगों ने तीसरे अध्याय का सारांश देखा। करीब करीब जो चीज आता है उसको हम लोगों ने टच किया। मूल उसमें वही है जो यज्ञ नियत कर्म क्या है। तो सबसे पहले रिनंसिएशन और एक्शन। जो अर्जुन ने पूछा क्या करें, ज्ञान योग मैंने संन्यास में जाए या कर्म योग करें, फिर निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग, ये जो है 3 से लेकर के 9 तक जो है। तो भगवान वही बोलते हैं, नियतम कुरु कर्मा, तुम कर्म योग करो, लेकिन कर्म में कौन सा कर्म करो? नियत कर्म करो।
फिर कर्म कांड टू कर्म योगा। ठीक है, अब बताते हैं जो कैसे कर्म करना है। तो यज्ञ करना है और कैसे भोजन को भगवान को अर्पित करना है। फिर उसको क्लैरिफाई करते हैं जो तुम युद्ध करो, क्योंकि युद्ध नहीं करोगे तो फिर आने वाला संतान जो है फिर तुम ही को फॉलो करेगा, क्योंकि जो श्रेष्ठ जन है संतति उसी को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो इसलिए तुम अगर कायर का काम करोगे तो सभी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, फिर बताया जो ग्रेटेस्ट एनिमी क्या है, हमारा बैरी क्या है, तो काम। और काम कहाँ से पैदा होता है, तमोगुण और रजोगुण से। तो फिर हमने बताया तमोगुण और रजोगुण को कैसे कम किया जा सकता है। तमोगुण और रजोगुण को कम किया जा सकता है जब उसको हम आनंद का स्रोत दें, उच्चतर आनंद का स्रोत दें। और हमसे भौतिक से उच्चतर आनंद का स्रोत भगवान ही है। जैसा हमने बताया भगवान की 3 शक्तियां हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड न्यूट्रल। इंटरनल जो है उसको हलादनी बोलते हैं, वो आनंद की शक्ति है। राधा रानी जो है हलादनी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो आनंद आत्मा डायरेक्ट परसीव कर सकता है। कैसे, तो नाम जप के माध्यम से, भगवान को भोजन अर्पण करने के माध्यम से, भगवान को पूजन अर्चन करने के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, नर्तन के माध्यम से। ठीक है, तो संक्षेप में तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। 3 कदम हम लोग आगे बढ़े। फिर कल मिलेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। टाइम तो करीब करीब समाप्त है, तो अगर आप लोगों को टाइम का कोई समस्या नहीं है तो पूछ सकते हैं। गौरव प्रभु। यस प्रभु। एक क्वेश्चन चाहें तो ले सकते हैं अगर किन्हीं का है। हम लोग आज थोड़ा कल 1 घंटा एक्सटेंड कर दिए थे, आज हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन लेंगे और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में हम लोग खत्म करें सेशन को। तो हमने आपको पूरा एक्सेस दे दिया अनम्यूट करने का, आप लोग अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण नारायण प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा और आनंद गौरव प्रभु भी बहुत अच्छी तरह से असिस्टेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रश्न है प्रभु, वो आपका आवाज कट रहा है, आप थोड़ा माइक पास ले आइए। यस प्रभु। और सभी लोगों को म्यूट कर दीजिए ना। सब लोग, बाकी लोग प्लीज म्यूट हो जाइए। 1 मिनट में सबको म्यूट कर रहा हूँ। सूरनाथ प्रभु और रविंद्र प्रभु आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु आप अनम्यूट कीजिए। रविंद्र प्रभु, रविनारायण प्रभु आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप म्यूटेड हैं प्रभु। रविनारायण प्रभु आप म्यूटेड हैं, आप म्यूटेड हैं। रविनारायण प्रभु, हाँ किए हुआ उनका। ही इज म्यूटेड। यस यस प्रभु, अभी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाइए। ओके प्रभु, मेरा प्रश्न है कि ये जो आपने बताया हरे कृष्ण महामंत्र, ये जप करने का क्या इम्पोर्टेंस है और महामंत्र क्यों बोला गया है? जी, और उससे पहले आपने बताया कि जय श्री कृष्ण चैतन्य, ये क्या जरूरी है? ये प्रभु जी थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी जी। हरे कृष्ण महामंत्र को, इसको महामंत्र क्यों बोला गया, ये जैसे कृष्ण भगवान है और कृष्ण के नीचे ही सब, जैसे कृष्ण की 3 शक्ति बताया, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। उनकी जो अंतरंगा शक्ति है वो राधा रानी है। तो उस शक्ति के संयोग से जो है स्पिरिचुअल लोक, जैसे वैकुंठ लोक सुनते हैं, गोलोक है, द्वारका लोक, ये सब भगवान के लोक हैं, इसकी उत्पत्ति हुई है। तो भगवान कृष्ण सबसे ऊपर है और भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं, और भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो उससे ही हरे कृष्ण महामंत्र ही आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके नीचे काम गायत्री है, काम गायत्री के नीचे ब्रह्म गायत्री है, और ब्रह्म गायत्री के नीचे फिर इस लोक के जैसे महामृत्युंजय जप है, भगवती जप है। इसीलिए अगर मंत्र का जप करना ही है तो भगवान के नाम का जप करें। भगवान का नाम से ऊपर कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि भगवान की बांसुरी से स्वतः भगवान सबसे ऊपर अवस्थित हैं और उनके बांसुरी से यही निकलता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी जब ध्यान किया तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान का ध्यान किया और इसी मंत्र का ध्यान किया।
फिर उनको गायत्री सरस्वती माता आई और उनको काम गायत्री का ये दिया, तो इसीलिए इसको महामंत्र बोला जाता है। और हम लोगों ने जो गीता फर्स्ट डे पढ़ा ना, गीता महात्म, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको मंत्रो तस्य नामानि यानि। अगर एक ही मंत्र जप करना है तो भगवान का नाम जप करना है। तो ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे नाम है। राम बलराम हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, हरे राधा रानी हो गई। ठीक है, इसलिए ये ब्रह्म गायत्री और काम गायत्री से भी ऊपर है। हालांकि काम गायत्री भी इसके साथ जपते हैं लोग, जब दीक्षा दी जाती है, जब दूसरे लेवल की दीक्षा होती है, ब्राह्मण लेवल की दीक्षा होती है, तब उनको काम गायत्री दिया जाता है। बट हरे कृष्ण महामंत्र ही मूल मंत्र है। और दूसरा प्रश्न क्या था प्रभु? हाँ जी, ये जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला क्यों बोलते हैं? वो जो है पार्षद हैं, जो श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो भगवान स्वयं है, और नित्यानंद बलराम जी हैं, और अद्वैत जो है वो महाविष्णु और महाशिव के संयुक्त अवतार माने जाते हैं, और गदाधर जो है वो राधा रानी है, और ये श्रीवास जो है नारद जी हैं। तो जब भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो अपने सभी पार्षदों को लेकर आते हैं, जैसे गोपी रूप में ललता, विशाखा, वो सब भी आए हैं, हनुमान जी भी हैं, जैसे मुरारी गुप्ता हैं वो हनुमान जी हैं। तो अब नाम जप के 3 तरह के नाम जप होते हैं। एक होता है नामाभास, एक होता है नामा अपराध, एक होता है शुद्ध नाम। एक है नामाभास, जैसे जप कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं इधर उधर है, फिर भी जप कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है नामाभास। तो उसका भी अपना फायदा है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। दूसरा है नाम अपराध। नाम अपराध में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे हमको वैष्णवों को, भक्तों का कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, उनसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उनका शिकायत नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र को जो है आम मंत्रों के समान नहीं समझना चाहिए, गुरु को सामान्य आदमी नहीं समझना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे अपराध हैं, 10 अपराध गिनाए गए हैं, जो 10 अपराध को भगवान भी माफ नहीं करते हैं। और जब आप भगवान की शरण में जाएंगे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन गुरु की अवज्ञा आपने की, इस महामंत्र को आम मंत्र के समान समझा, गुरु को आम आदमी की तरह समझा, तो ये सब माना जाता है अपराध है, और इस अपराधों का मोचन नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन ये संभव नहीं है। हम जब शुरू करेंगे तो पहले तो हमको मन नहीं लगेगा। नामाभास जब करते रहेंगे, मोबाइल पर बात करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, तो इसको नामाभास बोलते हैं। लेकिन नामाभास का भी अपना फायदा है। जैसे कल हमने अजामिल का सुनाया, उन्होंने नारायण बोला और विष्णु दूत आ गए। उन्होंने नारायण को नहीं पुकारा, उन्होंने अपने बेटे को पुकारा था, लेकिन भगवान का जप किया, उन्होंने नारायण का नाम लिया। इसको बोलते हैं नामाभास। नामा अपराध, जैसे गुरु की आज्ञा जो दीक्षित हैं या जो दीक्षित नहीं है, तो जिससे उन्होंने शिक्षा ली है, उनकी आज्ञा बात को नहीं मानना, महामंत्र को ऐसे ही मामूली मंत्र समझना। तो इसीलिए वो जो पंच तत्व हैं, वो भगवान स्वयं हैं, बलराम है, महाविष्णु है, राधा रानी है, तो उनको पहले हम जो है आवाहन करते हैं। उनको आवाहन करने से वो इन अपराधों से हमको मुक्त रखेंगे। जो नाम अपराध है, नाम जप करने में जो अपराध होता है, तो वो उस अपराधों से हमको बचाएंगे। उनको नहीं करेंगे तो फिर वो प्रगति नहीं होगी। इसलिए है जो जब भी जप करें तो पंच तत्व महामंत्र को 3 बार जप करके ऐसे शुरू कर। जैसे आपको 16 माला जपना है तो 16 माला तो 1 बार 3 बार जपे, फिर बाद में 1-1 बार भी हर माला पहले 1 बार जपना है। ये उसका पंच तत्व मंत्र का ये है। और फिर शुद्ध नाम है। शुद्ध नाम मतलब जहां आप नामाभास भी नहीं है और अपराध भी नहीं कर रहे हैं, आप गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गुरु को आम आदमी नहीं समझ रहे हैं, भगवान के महामंत्र को किसी मंत्र से नीचे नहीं समझ रहे हैं। वो 10 अपराध है, उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसीलिए पंचतत्व मंत्र जपना चाहिए। और अगर आपको हरे कृष्ण महामंत्र जपने में आनंद नहीं आ रहा हो, रस नहीं आ, शुरू में रस नहीं आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कितने पाप कर्म है ना। बहुत सारे पाप कर्म के संस्कार होंगे तो नेचुरली बेचैनी होगी, पीड़ा होगी, बैठेंगे तो सर में दर्द करेगा, कमर में दर्द करेगा। कितने संचित कर्म है वो सब निकलते हैं, तो धीरे धीरे आनंद आएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है जो अगर आनंद नहीं आता हो तो थोड़ा देर आप पंचतत्व महामंत्र का ही जप करें। 10, 20, 50 बार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इस पंचतत्व मंत्र का जप करेंगे तो रुचि बढ़ेगी। हरि बोल। हरे कृष्ण।
एनी अदर क्वेश्चन प्रभु? Yes. Any other question? One last question. हाँ प्रभु जी, मैं वी नन्ना बोल रहा हूँ जी। Yes. मेरा एक प्रश्न था कि आपने कहा कि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, मगर ऐसा भी मैंने पढ़ा है, सुना है काफी दूसरे सत्संगों में कि कल की भगवान भी आएंगे, कलयुग का अंत कर रहे हैं, वो भी विष्णु अवतार ही होंगे। जी जी तो जी। उसके बारे में आप कुछ हाँ, बताएंगे? कल की अवतार आएंगे। जैसे हमारा जो माप है हिंदू संस्कृति, हिंदू वैदिक नाप से, तो हमारा माप है युग ना, चार, एक चतुर्युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। तो कलयुग जो है वो 4,32,000 होते हैं साल एक कलयुग में, और 8,64,000 का द्वापर होता है, 12,96,000 का त्रेता होता है, और 17,28,000 4 गुना का सतयुग होता है। इस चारों युग को मिला दीजिए तो 43,20,000 का होता है। तो अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर तो 5,000 साल पहले खत्म हो गया। तो अभी कलयुग के मात्र 5,026 साल या 27 साल कुछ समाप्त हुए हैं। तो अभी भी कलयुग के करीब 4,25,000 साल बचे हैं। तो कल की आएंगे, वो कलयुग के अंत में आएंगे, लेकिन वो भी आएंगे तो अपने को भगवान बोल के नहीं आएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, जो भगवान त्रिजुगी बोले जाते हैं। जैसे कृष्ण आए तो कृष्ण भगवान है, उन्होंने डिक्लेयर किया अर्जुन को, मैं ही भगवान। रामचंद्र भगवान ने डिक्लेयर किया मैं भगवान। वैसे सतयुग में आए भगवान डिक्लेयर करके आए, लेकिन कलयुग में कोई ये नहीं बोलेगा मैं भगवान। वो आएंगे तो विभिन्न रूप में, इसलिए प्रच्छन्न अवतार बोला जाता है। जो छिपे हुए भगवान आते हैं, लेकिन वो कुछ दूसरे नाम से आएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो भक्त बोल के, अपने को नहीं बोलते हैं, वो भगवान का नाम जब करते हैं। कोई बोलता था आप ही भगवान है तो अपना कान बंद कर लेते थे, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, पाप लगेगा। अपने को कभी भी भगवान उन्होंने नहीं बोला। लेकिन जो भगवान में गुण होते हैं और जो पुराणों में और वेदों में लिखा है, जो भगवान आएंगे कलयुग में प्रच्छन्न रूप में और किस रूप में आएंगे, तो वो सारे शास्त्रों में लिखा है उनका क्या गुण होगा, कहाँ होंगे, कौन माता होंगे, पिता होंगे। तो कल की अवतार अभी वक्त है, अभी तो 4,25,000। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। यस माता प्रभु जी, प्रारब्ध आपने बताया, मैं खुद हरे कृष्णा आइस्कॉन से जुड़ी हूँ और आज 35-36 साल हो गए मेंबर हुए जी जी। और हम आते हैं बाकायदा हरे कृष्णा में और आइस्कॉन में रुकते भी हैं और भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति है और मतलब ईश्वर के प्रति बहुत समर्पण है, कृष्णा के प्रति भी। जी जी। और आई लव द कृष्णा एंड राधा, यू नो। तो क्या है प्रभु जी, फिर भी प्रारब्ध में इतने कष्ट हैं, ये कष्ट कैसे दूर करें, समझ में नहीं आता है। जब तप, यज्ञ, हवन, व्रत, तपस्या, पूजा, ध्यान सब करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता ये क्या हो रहा है। नहीं, वही जो जब तप जो भगवान बोले ना, कल बोले जो बहु शाखा में नहीं जाना है, एक करना है तो बस राधा कृष्ण, उसके सिवा और कुछ नहीं। क्योंकि जैसे ही बहु शाखा में गए, एक भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान कृष्ण राधा कृष्ण को छोड़ के आपने थोड़ा भी इधर उधर किया, इसका मतलब आपका दृढ़ विश्वास भगवान में नहीं है। तो दृढ़ विश्वास नहीं हुआ तो इसका मतलब पूर्ण भक्त नहीं। पूर्ण भक्त मतलब हमारा तन मन धन से समर्पण, हमारा शरीर भगवान के लिए, हमारा मन भगवान के लिए, हमारा धन भगवान के लिए, हमारा जन भगवान के लिए, हमारे जो बच्चे बीवी सब, वो सब भगवान की सेवा के लिए है। तो जब ये स्थिति आती है तो उसको सही माने में भक्त बोला जाता है, ठीक है ना। नहीं प्रभु जी, आई बिलोंग टू बनारसी, तो आई लव द शंकर जी, एवरी डे आई पूजा द शंकर जी एंड आल्सो कृष्ण और राधा, यू नो। तो आई कांट लीव द अपना शंकर जी, बिकॉज बचपन से दूध जल चढ़ाया है, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया है, तो वी कांट लीव द शंकर जी, यू नो। जी नहीं, लीव करना महादेव वी कांट। अब जैसे महादेव मंदिर गए तो उनको नमस्कार किया, महाशिवरात्रि है तो उनको नमस्कार किया, चले गए, तो उसमें नहीं। एवरी डे आई डू द शिव चैंटिंग, द शिव तांत्र स्तोत्रम एवरी डे, कृष्णा कटम एवरी डे आई डिड। बहुत लोग क्या करते हैं, जो राधा कृष्ण की भी पूजा करेंगे और थोड़ा जो है महादेव का भी करेंगे, शिव जी का भी जप लेंगे। इसका मतलब उनको पूर्ण विश्वास अभी भगवान में नहीं है। जब हम आपकी शरण में आ गए, अब हमको किसी की जरूरत नहीं है। यू आर द ऑलमाइटी। आपके यहाँ
धन जन जो भी ऐश्वर्य चाहिए वो भी है, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी है, आनंद चाहिए, भक्ति, भगवान सब चीज के मालिक है ना। तो वो दृढ़ विश्वास नहीं होगा, जरा भी हमारा अटेंशन इधर उधर जाएगा, इसका मतलब हमारा पूर्ण, जैसे बहुत लोग है ना, चलो कुछ कष्ट हुआ तो थोड़ा सा महामृत्युंजय जप कर लेते हैं, थोड़ा सा कोई बता दिया जो चलो कोई दुर्गा जी मंदिर, नहीं प्रभु जी, जब बचपन से करते आ रहे हैं 2 साल से शिव जी की पूजा, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? इसी को माता जी आसक्ति बोलते हैं। जैसे हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े और हमको इंजीनियरिंग पढ़ना था, तो अब हम हाई स्कूल के किताब को लेके, हाई स्कूल के टीचर को लेके जिन्हें हम उनको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर जाना है तो नीचे के क्लास को छोड़ना ही पड़ेगा, नीचे के गुरु को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है जब हम जाएंगे तो हम इंजीनियरिंग में चले गए तब हाई स्कूल के टीचर को हम आदर नहीं देंगे। आदर सभी देवी देवताओं को, तो भगवान ने बोला ना भी, जो यज्ञ करें तो किसको अन्न किसको देना है, हवन देवताओं को देना है, भगवान को भी देना है, विष्णु को देना है, सभी देवताओं को खुश रखना है, क्योंकि सारे भगवान ने सबको दिया हुआ है। बारिश के देवता अलग हैं, इंद्रदेव बारिश करते हैं तो उनको भी आहुति देंगे, लेकिन मुख्य जो है भगवान होंगे। तो इसीलिए आदर सबका करना है, अनादर किसी देवता का नहीं कर सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट उनसे नहीं रहेगा। शिव जी का अगर आपने जप किया तो शिव ने आपको कृष्ण के पास पहुंचा दिया। अगर आप दुर्गा का भक्त होंगे, चूंकि शिव को तो अधिकार नहीं है ना आपको मुक्त करने का, शिव का अथॉरिटी ही नहीं है, तो इसीलिए शिव जी का अगर आप भक्त हैं तो उन्होंने आपको राधा कृष्ण के पास पहुंचा दिया, है कि नहीं? करेक्ट। अब शिव जी को छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन शिव जी का अनादर नहीं करेंगे। शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उनको माथा झुकाएंगे ही, लेकिन शिव जी के लिए जब चलो थोड़ा सा वो जो रुद्राभिषेक कर लेते हैं, कष्ट है, तो जब आप देखेंगे पूर्ण, चूंकि एक सच्चा भक्त होना पड़ेगा। भक्त के जैसे हम बोले ना, नामाभास है, अपराध सहित नाम है, तो हम लोग भक्ति में हैं, लेकिन अभी कनिष्ठ भक्त हैं या मध्यम भक्त। लेकिन प्रभु जी, शिव जी भी तो कृष्ण की पूजा, राम विष्णु और नारायण शिव जी भी तो करते हैं। हाँ, तो वही भगवान तो वही बोलते हैं ना, जो हमारे भक्त हैं उनका आदर करो। अब शिव जी की आप पूजा करेंगे तो शिव जी की पूजा आप 2 तरीके से करेंगे। एक करेंगे आपका कोई कष्ट दूर हो जाए, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति, महिलाएं ज्यादा करती हैं ना, अच्छा पति मिले, प्रॉब्लम, तो उससे करेंगे तो शिव जी आपकी इच्छा पूर्ति कर देंगे। लेकिन शिव जी की आप निष्काम पूजा करेंगे, कोई इच्छा नहीं, लेकिन हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो वो आपको भगवान कृष्ण के दरवाजे पर लाके पटक नहीं, एवरीडे निष्काम पूजा करते हैं, मेरा कोई डिमांड नहीं। इसीलिए तो आप इस्कॉन में आ गए ना, इसीलिए आप राधा कृष्ण के पास आ गए, इसलिए आपने हरे कृष्ण महामंत्र पहुंचा दिया, इसलिए अब इस्कॉन में तो हम 78 से जुड़े हैं प्रभु जी। जुड़े हैं, लेकिन अभी भी शिव जी से जुड़े हैं ना, तो इसीलिए नहीं, राधा कृष्ण चाहते हैं तो राधा के प्रति हमारा 100% समर्पण होता है। 100% नहीं हुआ ना माता जी। अगर शिव जी से अटैचमेंट है, जो हम शिव जी को बचपन से ही पूजते हैं, उनको कैसे छोड़ें, तो वो शिव जी के प्रति अभी भी आपकी श्रद्धा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो उनका अनादर करना है, श्रद्धा और आदर में संपर्क है। जैसे मैं बोला ना, मैं अगर इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ के टीचर का ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। हम स्कूल वाले टीचर के पीछे पड़े रहेंगे और वो किताब लेके जिन्हें इसको मैं से कैसे छोड़ दूं, ये टीचर ने हमको हाई स्कूल पास कराया, कॉलेज पास कराया, तो फिर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। हम नहीं कर सकते हैं ना एक साथ हाई स्कूल का, कॉलेज का और इंजीनियरिंग का किताब ना मैं पढ़ सकता हूँ, ना सारे टीचर को मैं खुश कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो इसलिए, लेकिन आदर, जब मैं घर जाऊंगा तो हमको हाई स्कूल के शिक्षक मिलेंगे तो उनको मैं भी प्रणाम करूंगा। हमारे स्कूल के किताब रखे हैं, अगर हमको कुछ रेफरेंस करना है तो मैं स्कूल का भी किताब देखूंगा, लेकिन उसके प्रति हमको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सब लोग जो भी जप कर रहे हैं, लेकिन कोई कनिष्ठ है, कोई मध्यम है, उत्तम मतलब 100% श्रद्धा विश्वास जो है। आपको दुख दे रहे हैं तो ये मानना है कि भगवान चाह रहे हैं, वो भगवान की इच्छा है, आप समर्पित, हम समर्पण हो गए, अब आप दुख दो कि सुख दो, ये फीलिंग होना चाहिए। ये नहीं भगवान हमको कष्ट काहे दे रहे हैं, भगवान कष्ट दे रहे हैं तो वो भगवान जाने। जब हमारा तन मन धन जन सब भगवान को समर्पित है तो फिर हमारी चिंता क्या रह गई? ये तन उनका है, इसको कष्ट दें या जो भी करें, धन उनका है, हरण कर लें या रहने दें, जन उनका है, हमारे अपने ले लें या छोड़ दें। तो जब सब चीज समर्पण होगा तब वो भक्ति कहलाती है, सही भक्ति। ऐसा नहीं है हम और आप भक्त नहीं है, लेकिन हम लोग भक्त के विभिन्न सोपान पर हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, उसके बीच में। करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू आज के सेशन के लिए। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु। कल सेम टाइम पे मिलेंगे और आई होप आप लोगों के ग्रुप्स में, आज व्हाट्सएप ग्रुप में आज सारा लिंक आ जाएगा
जूम का, इस्कॉन मैंगलोर का और सब कुछ, जहाँ पे आपको सारे प्रेजेंटेशन, स्लाइड सब कुछ मिलेंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उन फैसिलिटीज का भी आप लोग एडवांटेज उठाइए। और आज का गौरव सेशन, प्रभु, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा नाम ऐड कर देंगे प्लीज, वही मैं कल भी बोला था आपको। हो जाएगा कन्हैया प्रभु, नोटेड। प्रभु हाँ सर, मेरा नाम मेरा तो मेरा भी सर क्षमा गुप्ता। लीना कोयमकर। क्षमा गुप्ता प्रभु। ठीक है, ओके, बिल्कुल। आप लोग बस एक काम कीजिए, अगर आप एक ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं अभी। हाँ हाँ। NAMA, एक मिनट प्रभु जी। हाँ, बोलिए। बोलिए। NAMA, MA। N से नीदरलैंड्स, A से अमेरिका, M से मुंबई, A से अमेरिका। Yes, sir. NAMA सर। NAMA, नीदरलैंड्स अमेरिका, मुंबई अमेरिका। DA, दिल्ली अमेरिका, स्विट्जरलैंड। नामादास, एक ही वर्ड है वो, नो स्पेस। रामादास। नामादास। आप इस पे लिख दीजिए प्लीज, इस चैट पे लिख दीजिए। मैं चैट नहीं यूज कर पा रहा हूँ इसलिए। चैट नहीं है। नामादास आगे @gmail.com बस। उसमें क्या डिटेल लिख के भेजना है? कुछ भी, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, डाउट है, जैसे अभी आपको नंबर देना है, बस आप सब्जेक्ट में लिख दीजिए और लिख दीजिए वहां पे, प्लीज ऐड मी टू द हिंदी ग्रुप ऑफ सुरनाथ प्रभु, सुरेंद्र प्रभु, आप ऐड हो जाएंगे। सुरेंद्र प्रभु जी, आई कांट राइट, मैं नहीं लिख पाई। NAMA, हाँ मैंने डिलीट कर दिया। NAMA DAS NAMA BAS D for Delhi D, okay, @gmail.com। @gmail.com, okay। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you all the devotees. Thank you for Thank you. wonderful हरे session. कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हम हरे पढ़ लेंगे फिर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा सुरनाथ प्रभु, रिकॉर्डिंग बंद करके आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।